Namaskar. So, how are you guys? Hope you are doing well. In today's video, we will actually talk about a topic: are Muslims really secular? As you know, it is a very controversial topic. Many people will agree, many people will give hate, but I choose to speak facts. As it is a country which gives the right to every citizen to keep their opinion, so I will today utilize this right and tell you all that are Muslims really secular in this world. So firstly we will start with stats. Stats says in India the Muslim community which lives in India have the illiteracy rate of 42.7 percentage. Okay, no problem. Many people go to madrasa in Muslim community and government take them as educated, but are they actually educated people? In madrasa the education is very much different from the modern education. They actually teach about their religious texts and other all things. I met many peoples around in my lives. They tell in madrasa they actually teach the principles of Muslim community, the religion. It's good, everyone should go, but they actually teach wrong things. They give hate, spread very much hate to other communities, especially Hinduism in India. But in Hinduism, Gurukul, we know, as it is now abolished in India, but in Gurukul they also teach for fundamental texts about Bhagavad Gita and all. But it's a fact that Bhagavad Gita is not a religious book. It is a book which teach us how to live our life. Every religion can, every religious people, person of any religion can read this book. If they find any such line that says that this religion is bad, Hinduism is great, I will leave Hinduism. I am a Hindu. My name is Rohan Gupta. I am a Vaishya of Hindu, but always say me as a Hindu. I don't believe in caste system and all. Only Hindu, Sanatani, proper Sanatani. So coming back to the topic, they say terrorism doesn't have any religion. I understand, but how come 97% of the attacks done in the world are of Muslims? There is a whole topic of Islamic terrorism in of Wikipedia. The whole word says that Islam is the main region of terrorism, and it's a fact. We all know. Islamic terrorism, you can go and check Wikipedia. It's whole written that the attack or killing of people which are made with a motive of spreading the religion is known as religion terrorism. And no Hinduism terrorism is there in Wikipedia. No Christianity terrorism. Why only Islamic terrorism? Because they all know that 97% of attacks are done by Islamist people, Muslim people. And Islam, I am not saying that all Hindus and all other religions are good, but the concept, the mentality which the religion teaches is correct in Hinduism, and it's a fact. They say females are being discriminated in Hinduism. Females are being discriminated in Hinduism. Many people says in Ramcharitmanas many lines are written which degrade the respect of females. In Hinduism, we say if a girl child is born, we say Lakshmi Janam diye. It's a famous quote. When any girl marries and goes to the husband's house, they say Lakshmi aayi hai. We actually praise females. Now it's the common line. I know many domestic violences are there in Hindu. Many people does bad things, but the concept, the religion never says that females are less
valued than males. In Islam, in Islam, you know, females are not even allowed to go to mosque. मस्जिद नहीं जाने देते मुसलमान समाज में। बताइए, वो लोग मस्जिद नहीं जा सकते। यहाँ पे तो पूजा करते हैं हम लोग लड़कियों की, वो लोग तो पूजा घर में नहीं जाने देते हैं। और यहाँ तक क्लोथिंग होती है कि बस इज़्ज़त बचा कर रखें। हिंदुज़म में तो आप जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ क्लोथ और होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उनका राइट है। नाउ कमिंग बैक टू अदर पॉइंट ऑफ वेदर मुस्लिम्स आर सेकुलर और नॉट। दे से कश्मीर में मुस्लिमों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। टर्की बोलता है, पाकिस्तान बोलता है। मेरे को एक बात बताइए आप लोग, 1992 में हिंदुओं के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई थी, सब जानते हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। और सोच सकते हैं आप लोग कि हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया, उनके घर जला दिए गए, और फिर ये लोग कहते हैं कि मुस्लिमों के साथ कश्मीर में अत्याचार होता है। हिंदुओं के साथ क्या हुआ था ज़रा बताइए। आपने तो उन्हें मार ही डाला, अत्याचार की तो बात ही छोड़ा। अत्याचार तो तब होगा ना जब कोई जिंदा होगा। घर जला दिए, हड़प लिए, यही तो आता है। खुद की दम पे कमाई तो आती नहीं है, बहुत पॉवर्टी। मुस्लिमों का पॉपुलेशन रेशियो इंडिया में आई थिंक 20% से कम है शायद, या फिर अब तो वो लोग इतनी जल्दी एक घर में एक माँ बाप के 8-8 बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन तो 20 होगी ज़्यादा, पहले तो कम थी। सोचिए इतना कम पॉपुलेशन का रेशियो, बट पॉवर्टी में 28% मुस्लिम कंट्रीब्यूट करते हैं, बिलो पॉवर्टी में। ऐसा क्यों? अब वो लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक हिंदू स्टेट, पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट के हिसाब से बांटा था। पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट बना, कोई दिक्कत नहीं। हिंदू को एक हिंदू स्टेट बनना था, नहीं बना। क्यों नहीं बना? आवर रिस्पेक्टेड नेहरू एंड गांधी जी, वो लोग, उनकी लाइनें ऐसी हैं कि अगर वो लोग हमें मारना भी चाहें तो मारें, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। गांधी जी, महात्मा गांधी, यू ऑल से इंसान तो सरदार वल्लभ भाई तो मेरे सबसे बड़े आइडल हैं जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो हम लोग के फर्स्ट पीएम बनने के प्रॉपर हकदार थे, वो अपॉर्चुनिटी उनसे छीनी गई। नेहरू जी बने, देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, नेहरू जी हमारे पहले पीएम। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, आर मुस्लिम्स रियली सेकुलर? मुस्लिम्स कहीं पे भी मेजॉरिटी में आते हैं तो हिंदूज़ के साथ अत्याचार अपने आप। कश्मीर में, हैदराबाद में, पालघर में तो जो हुआ वो तो, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, आप बहुत सारे केसेस होते हैं। हिंदूज़ कब से मेजॉरिटी में इंडिया में? आज तक ऐसा केस है कि हिंदुओं ने मुस्लिमों को भगा दिया हो। अरे तुम लोग सिर्फ एक जगह मेजॉरिटी में आए थे और सेकुलर की एक कर दी, सेकुलरिज्म। आर मुस्लिम्स रियली सेकुलर? They are actually not secular. The day when Muslims will come in majority in India, this country will not be a secular country, and it's a fact. But that day will never come, I know. Hindus will wake up, hope so. I don't say कि ऐसा करो, उनको मुस्लिमों को मारो, कोई गलत बात नहीं, सब साथ रहेंगे। पर एक बात उनको समझनी चाहिए कि वो लोग जिस देश में रह रहे हैं वो उनकी ज़मीन थी नहीं, वहाँ उनको शरण मिली है। आप मेहमान हैं, और हम लोगों ने अभी तक मेहमानी करी है, आगे भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, अगर आप मेहमान बने रहेंगे। मालिक तो कोई और ही है ना। कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूँ मैं, किसी को मारने ना लगेगा, सब भाई बहन हैं। बट सेकुलरिज्म में मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ हिंदू स्टेट हो जिसमें मुस्लिम भी रहें, बट अकॉर्डिंग टू आवर सेल्स। कोई कहीं नहीं भागेगा, दे आर आवर सिटीजन, दे विल गेट द राइट, बट इन लिमिट्स। नाउ जैसे सेकुलर हम सेकुलर है। अयोध्या केस में हम लोग, बाबरी मस्जिद बनी तो उससे पहले मंदिर था, उसका तो कोई प्रूफ ही मेरे को नहीं देना, मतलब प्रूफ ही नहीं देना। मैं गया था अयोध्या, वहाँ पे 250-300 पुरानी साल मूर्तियाँ मस्जिद के नीचे से निकली। पॉसिबल? अच्छा, कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, वहाँ पे क्या होगा? मूर्तियाँ कोई गाड़ थोड़ी देगा, वो अपने आप तो निकलेंगी नहीं।
उन्हें निकाला गया, तो प्रूफ हुआ मंदिर है, सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट उसने डिसीजन दिया। अयोध्या द होली प्लेस ऑफ हिंदुज़म, मतलब इतनी ज़्यादा धार्मिक जगह, मतलब हिंदुज़म के रिलीजियस टेक्स्ट में बहुत मैटर करती है। मैं मक्का से कंपेयर कर ही नहीं रहा हूँ मुस्लिमों के, क्योंकि इट्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंड एग्जिस्ट इन इंडिया। रामचंद्र जी पैदा हुए, जन्म लिया, सॉरी ये शब्द यूज़ करने के लिए, वो धरती पर आए अवतार में विष्णु जी के, और उन्होंने मानवता को एक नया रूप दिया। वो जिस जगह पे पैदा हुए, जिस पॉइंट पे, जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, वो पॉइंट हिंदुज़म के लिए बहुत मैटर करता है। वो प्लेस ऑफ लैंड, वो पीस ऑफ लैंड, मतलब हमारे लिए हम लोग जान भी छिड़क सकते हैं। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस लैंड की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। मतलब वो लोग वहाँ, उनका मस्जिद है, आई रिस्पेक्ट इट, ऑफ़र करते हैं वो अल्लाह को। एक बात बताइए, हम लोग जो मंदिर होगा वो उस पीस ऑफ लैंड के अगल बगल तो बनाएंगे नहीं, हम लोग वहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ रामचंद्र जी हमारे पैदा हुए, तो हम लोग अपनी ऑफरिंग्स वहीं देंगे। बट मुस्लिम्स के लिए उस लैंड की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उनका कोई भी वहाँ पे पैगंबर या कोई पैदा नहीं, धरती पे नहीं आया था। तो वो लोग अगर अपनी मस्जिद वहाँ से हटा के अलग जगह बना के ऑफरिंग्स करें, तो उनके लिए कुछ नहीं जाएगा, मतलब उनके लिए नथिंग विल चेंज। देन व्हाट इज़ द इशू? इशू क्या है? आप लोग ये बताइए। इशू सिर्फ ये है कि हम नहीं हटाएंगे। हिंदू लोग जो हैं, उन लोग का यही तो कहना था कि आप इस जगह से अपनी मस्जिद को वहाँ शिफ्ट कर दिए। उनकी मुस्लिम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इस्लाम की, बट हिंदू लोग से वो लोग कह रहे हैं आप कहीं और बना लीजिए, ये क्या मतलब है? मतलब हमारे जहाँ भगवान जी हुए, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि वहाँ पे हुए, तो हम लोग को वहाँ तो मंदिर हमारा बनना ही चाहिए ना। अगर आप सेकुलर होते तो ऐसा सोचते, पर आपने नहीं सोचा। आपको जो 5 एकड़ ज़मीन दी गई, वो इसी कॉन्सेप्ट पे दी गई कि आप वहाँ पे परफॉर्मेंस कीजिए, क्या दिक्कत है? सेम केस विद बनारस, काशी। बनारस में जब साफ साफ लिखा कि शिवलिंगा निकली, तो फिर आप लोगों को, अगर सेकुलर होते तो आप लोग कहते कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बना दीजिए, बट हमको 5 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन अलग जगह दीजिए जहाँ हम अपनी ऑफरिंग करें। मतलब आप सोच सकते हैं, हमारी शिवलिंग निकली उनके मस्जिद में से, अगर हिंदू की, हम लोगों की वहाँ पे शिवलिंग, हमारे शिव भगवान विराजित है वहाँ, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो उखाड़ना है जिसको उखाड़ ले। मथुरा, काशी, सेम केस। बस इतना ही कहना था आप लोगों को। आगे आप लोगों का ओपिनियन, मुस्लिम सेकुलर हैं कि नहीं? धन्यवाद। जय श्री राम।